ایک عمل میں کچھ تھوڑا عرصہ پہلے بتایا تھا تھوڑا عرصہ پہلے، لیکن اس کے نتائج اتنے زیادہ کیونکہ لوگ اس میں مبتلا تھے۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا ہوگا، اور کتنے لوگ آپ میں سے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آزمایا ہوگا کہ جو بندہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، ربنا لک الحمد کہے گا، اور اس کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے چاہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جوڑوں کا درد، نچلا دھڑ، جوڑوں کا درد اور نچلا دھڑ حیرت انگیز طور پہ صحت، شفا، اور اللہ پاک نچلے دھڑ کو معذور ہونے سے انشاءاللہ بچائے گا۔ چھوٹے سے بول ہیں، کیا فائدہ ہو؟ کہتے میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 62 سال کی عمر ہے، 62 کی۔ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، یہ پڑھتا رہا، اب میں ٹھیک ہوں۔ اور جی ہاں جی، اور کوئی مختصر بتائے جی؟ ہاں، گھٹنوں کا درد ختم ہو گیا جی۔ ایک منٹ، ہاں ٹھہرو، کہتے 2 سال پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں، موڑے پہ کرسی پہ پڑھتا تھا، میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ انسان، میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بات سنی، میں آپ کی بات سنتا ہوں، بیٹھے سنتا ہوں۔ میں نے ایک بندے کی ایک دفعہ ایک بات سنی، پر سوچ میں پڑ گیا۔ بیرنگ لے کے بیٹھا ہوا تھا، بیرنگ اسے نے کپڑے کی ٹاکی سے صاف کر رہا تھا، دیکھتا تھا کہ بیرنگ میں آواز آ رہی ہے، پھر خود ہی کہنے لگا ایک گولی بیرنگ کی کہیں گر گئی ہے۔ میں نے کہا باقی گولیاں تو ہیں، کہ نہ ایک گولی بیرنگ کی کہیں گر گئی ہے۔ ٹرالے، بڑے بڑے 22 ویلر ٹرالے، ایک ٹائر پنکچر ہوتا ہے، ٹرالا نہیں چلاتے، ایک ٹائر تو ہے، تو ایک ٹائر سے کیا ہوتا ہے؟ نہ ایک ٹائر سے ہوتا ہے، ایک گولی سے ہوتا ہے، ایک چٹکی نمک سے کھانا ذائقے دار ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ ایک چائے کی وہی پتی پوری طرح نہ پکائیں، وہ ذائقہ اور ہوتا ہے، وہ ذائقہ اور ہوتا ہے، اور ایک چینی کی آدھی چمچ سے یا چٹکی سے فرق پڑتا ہے، نہیں پڑتا؟ چھوٹی چیزوں سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ دنیا کے اسباب سے تو یہی ہے۔ ہمارے پڑوس میں نا ریڈیو ہوتی تھی، ریڈیو ہمارے گھر میں زندگی میں نہ کبھی ریڈیو رہی نہ ٹی وی رہا، تو ریڈیو ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ وہ بندہ کیا کرتا تھا، اب مجھے شوق ہوتا تھا اس کی ریڈیو کی سوئی گھمانے کا، اسے پتا ہے یہ برباد کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔
अच्छा, वो सुई आके उसी लकीर के ऊपर लगती थी, है? वही सुई घुमाते घुमाते लकीरें बनी होती, छोटी बड़ी। वो उस तरह की पुरानी हमारी म्यूजियम में भी पड़ी हैं। वो उस पे लगती थी तो फिर आवाज आती थी, वरना शू शू शां शां और ऐसे आवाजें आती थी। क्या इससे कुछ नहीं होता? वो कहते थे ठहरो, तुम्हें पता नहीं है। और घुमाते घुमाते ना ऐसा उस लकीर पे जाके जब वो आती थी फिर आवाज आना शुरू हो जाती थी। छोटी चीजें जिंदगी पे असर डालती है। ये जानवर वालों से पूछे, जो जानवर रखते हैं उन्हें पता है जिम्मेदार जानवर का मुंह कैसा है, जानवर बोल कैसे रहा है, जानवर खड़ा कैसे है। जमीन को देख के जिम्मेदार कहता है जमीन क्या बोल रही है, मुझे पैगाम दे रही है, क्या इस काबिल है कि इसमें बीज डाला जाए। इसी तरह रुकू से उठने के बाद जो बंदा ये बोल बोलता है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बस 5 बोल है, वह मुख्तसर से अनपढ़ बंदा भी थोड़ी सी तवज्जो करे, यूं याद कर ले। अब बताएं क्या फायदा हुआ आपको? सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी, घुटना काम नहीं करता था, अब चढ़ी जाती है। और क्या फायदा किसको हुआ जी? घुटनों में दर्द नहीं होता, पट्टों का खिंचाव ठीक हो गया, नमाज में चुस्ती आई, थकावट नहीं होती, हादसा हुआ घुटने पे चोट आई ठीक हो गया। कमर का दर्द खत्म हुआ, घुटना सजदे में जाते हुए मुड़ जाता था ठीक हो गया, मोहताजी नहीं होती, जोड़ों का दर्द ठीक हो। एक्सीडेंट हुआ 4 साल टांग ठीक नहीं हो रही थी, पढ़ना शुरू किया ठीक हो गया। पुराना कमर और मोहू का दर्द ठीक हुआ, यूरिक एसिड ठीक हो गया, बस और ना बता, बस। हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोला कि घुटनों में इंजेक्शन लगाना है, लिहाजा ठीक हो गया, बस चलो आगे यही कहना ना, चलो। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें शामिल करें, सीखते जाएं। मैंने आज की महफिल की इब्तिदा में एक लफ्ज कहा है कि सारी उम्र सीखते जाएं, सारी उम्र सीखते रहें, अपनी जिंदगी में सारी उम्र सीखते सीखते ये चीजें शामिल करते जाएं। बहारें, बरकतें, राहतें, रहमतें, इज्जतें, शान व शौकतें, वकार, सरबुलंदियां, ये नस्लों में और खुद में और जिंदगी में शामिल हैं। इन चीजों को जिंदगी में शामिल करें। अगर जिंदगी में इन चीजों को शामिल न किया, जिंदगी फिर टूटी फूटी एक जिंदगी होगी, धक्के खाते खाते जिंदगी गुजर जाएगी। ना ना ना, फिर दुनिया हसनतम ये है और फिल आखिरत हसनतम ये है। क्या ख्याल है? मेरे कमली वाले ने जो बोल फरमाए हैं उनको पढ़ने से दुनिया बेहतरीन हो जाए, फिर दुनिया हसनतम, दुनिया में
इतनी कर्ब तकलीफें मुश्किलात सहते सहते जिंदगी गुजर गई। एक ये है कि जिंदगी में सुकून देखते देखते जिंदगी गुजर गई। बोलो, तकलीफ वाला पैकेज चाहते हैं या सुख वाला? तो फिर दुनिया हसनतम, ये सुख वाला पैकेज है। उसके लिए दर मुस्तफा, चौकट मुस्तफा से जो मोती मैं आपको दे रहा हूं, ये जिंदगी में शामिल करते जाएं, ये जिंदगी में शामिल करते जाएं, इसको जिंदगी में शामिल करते जाएं। जिंदगी में बाहर ही बाहर है। कौन सा वक्त लगता है? चंद लम्हों के लिए खड़ी होकर पढ़ ले हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। कितने सेकंड लगे? हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप 2 सेकंड कहते हैं, आप 3, ये 2 कह रहे हैं, वो 2 कह रहे हैं, वो 2 कह रहे हैं, वो 3 कह रहे हैं। चलो 3 सेकंड मान लेते हैं। 3 सेकंड का अमल आपकी जिंदगी में बरकतें और बहारें ले आए, सेहत और तंदुरुस्तियां ले आए। अल्लाह मंजे और बंदे का मोहताज ना बना। अल्लाह कभी चारपाई का और बंदे का मोहताज ना बना। ये खैरें ले आए, उससे बड़ी बरकतें, उससे बड़ी खैरें, उससे बड़ी रहमतें और क्या होंगी? अपनी जिंदगी को इन रूहानी सफर के साथ रवादार रखें, वरना याद रखिएगा वो सब कुछ छीन लेगा। वो जिन्नाती शैतानी चीजें, वो ऐसी अनदेखी चीजें, वो आपसे मुझसे ऐसा कुछ छीन लेगी कि कुछ भी नहीं होगा। और फिर मुआशरे पे बोझ होगा, फिर जिंदगी पे बोझ होगा, जिंदगी पे बोझ और मुआशरे पे बोझ होगा। लोग इससे दूर हटेंगे, भागेंगे, अपनी औलाद भी। और अगर जिंदगी में ये मोती शामिल करते जाएंगे, ये बहारें शामिल करते जाएंगे, ये राहतें शामिल करते जाएंगे, जिंदगी मुनव्वर मुज़य्यन होगी। जिंदगी में राहतें और खुशियां और खुशहालियां हैं और बहारें और बरकतें हैं। क्यों ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? हाँ, तकदीर में अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत लिखी थी, आ गई, वो तस्लीम और रज़ा है। मोमिन कहते हैं, मौला मौला अगर तू इस पे राजी है, मैं भी राजी हूं, लेकिन जानबूझ के मुसीबतें तो ना मांगे। एक तकदीर में लिखा है। मेरा अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे, आखिरत बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत छोटी है, तुझे मैंने ये मुसीबत परेशानी देनी है, और इस मुसीबत परेशानी के साथ मैंने तुझे तेरे लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें, आफतें, परेशानी और तेरी नस्लों की बलाएं टाल देनी है, बलाएं टाल देनी है। इंसान को खबर नहीं होता कि इस मुसीबत परेशानी में मेरे लिए राहत के दरवाजे क्या हैं। इन्नमल उसरि युस्रन, ये क्या है मेरे लिए, कोई खबर नहीं। लेकिन जानबूझ के तो ना मांगे। आफतें बलाएं बिखरी हुई हैं।